Good afternoon, students. It's our third lecture on vector calculus. In previous lecture, we have seen how to get the divergence of vector, how to get the curl of vector, then the problems which is based on that, and next again we see some problems which is based on the irrotational vector, and we have seen which vector is called as a irrotational vector. The curl of that vector is equals to 0, then that vector is called as irrotational vector. There are some problems which are based on that. Here is prove that v bar is equals to 2xyz I plus in bracket x square z plus 2y into j plus x square y into k is irrotational vector, and find a scalar function u such that there is a relation between that vector and u, that v bar is equals to grad u. That is a relation, and from that relation you have to find a u. अगर कोई वेक्टर irrotational रहता है then there exists some scalar potential related to that irrotational vector, and there exists a relation between that scalar potential and that vector is such that that vector is equals to grad of that scalar potential. Means v bar अगर irrotational vector है, so there exists a scalar potential u such that v bar is equals to grad u. तो सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि v bar is irrotational. अब v bar irrotational दिखाना है, मतलब what you have to show? You have to show del cross of v bar is equals to 0, that is curl of v bar is equals to 0. So सबसे पहले हम as it is यहाँ पे v bar की वैल्यू लिख लेते हैं. v bar is equals to, we have given that is 2xyz I, then plus in bracket x square z plus 2y into j plus x square y into k. ये हो गया आपका v bar. अब लेते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज अ डेल क्रॉस ऑफ v bar. नाउ डेल क्रॉस ऑफ v bar हमें पता है, वी टेक दैट वैल्यू इन अ डिटर्मिनेंट. सबसे पहले रो में i j k रहेगा, सेकंड रो में डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, और थर्ड रो में कोएफिशिएंट ऑफ i j k ऑफ दैट v bar, वेक्टर v bar. i का कोएफिशिएंट यहाँ पे v bar में क्या है, दैट इज अ 2xyz. यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है x स्क्वायर z प्लस 2y, और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट है x स्क्वायर y. तो ये तो हो गया हमारा डिटरमिनेंट. सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने लास्ट लेक्चर में 2-3 प्रॉब्लम इसमें किए हैं. सो वी राइट द डिटरमिनेंट. सो i इंटू हियर वी हैव टू टेक ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे. वी टेक अ डेल डेल y ऑफ दैट, सो दैट इज अ डेल डेल y ऑफ x स्क्वायर y माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा, डेल डेल z ऑफ, हियर इज अ डेल डेल z ऑफ x स्क्वायर z प्लस 2y, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएंगे कंप्लीट. देन माइनस ऑफ j, हियर इज अ माइनस j, अगेन द रो एंड द कॉलम eliminate, so del del x of that, here is a del del x of x square y माइनस यहाँ पे क्या होगा, del del z ऑफ, here is a del del z of 2xy z, देन प्लस लास्ट में यहाँ पे k इंटू इन ब्रैकेट. जब k लेंगे सो eliminate रो एंड द कॉलम ऑफ दैट k, सो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा del del x of that term, that is a del del x of x square z प्लस 2y माइनस ऑफ यहाँ पे होगा del del y ऑफ दैट 2xy z. डिटरमिनेंट सबको पता है, बहुत बार आप लोगों ने डिटरमिनेंट सॉल्व किए भी होंगे. m1 m2 में भी डिटरमिनेंट व्हेन यू हैव टू सॉल्व द जैकोबियन और फाइंड द जैकोबियन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन. And now we can simplify that. That is a del cross of v bar is equals to, अब क्या आता है हम देखेंगे, i into in bracket, यहाँ पे क्या होगा, del del y of x square y. अब x square तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा बिकॉज वी आर टेकिंग अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और y की एक ही टर्म में सिंपली y, सो y का डेरिवेटिव 1 रहेगा, 1 into x square, दैट इज अ x square. सो हियर वी राइट x square, साइन है यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस डेल डेल z ऑफ, यहाँ पे z की सिंगल टर्म है z, यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू z का डेरिवेटिव होगा 1, और सिंपली x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे तो 2y है, सो विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 2y का डेरिवेटिव, यस ऑब्वियसली इट बिकम अ 0, सो सिंपली यहाँ पे रहेगा हमारा x स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम x स्क्वायर, देन माइनस j, आगे आएंगे फिर
अब यहाँ पे क्या है, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, सो विथ रिस्पेक्ट टू minus of j here del del x of x square y, so derivative of x square is a 2x into y, so यहाँ पे हो जाएगा 2xy माइनस नेक्स्ट है डेल डेल z ऑफ 2xyz, विथ रिस्पेक्ट टू z है तो सिंपली z का डेरिवेटिव 1 होगा, रिमेनिंग टर्म एज इट इज रहेंगी, दैट इज 2xy, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2xy ब्रैकेट कंप्लीट। अब आगे के स्टेप की तरफ आ जाएंगे, प्लस k है यहाँ पे, अब k के ब्रैकेट में टर्म क्या है, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जेड प्लस 2 है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू जेड, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो 2y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे z मल्टीप्लीकेशन में तो वो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 2x इंटू जेड, देन माइनस डेल डेल y ऑफ 2xyz, सो विथ रिस्पेक्ट टू y y का डेरिवेटिव 1 और a टर्म मल्टीप्लिकेशन में 2xz तो एज इट इज रहेंगी, दैट इज 2x। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट सॉल्विंग। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो i इंटू इन ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो ऑब्वियसली इट बिकम 0, यहाँ पे 2xy माइनस 2xy, सो ऑब्वियसली दैट टर्म इज ऑल्सो 0, 2x माइनस 2xy माइनस 2xy, यहाँ पे है 2xz माइनस 2xz, ऑल्सो इट बिकम 0। अब ये सभी टर्म 0 हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल क्रॉस ऑफ v बार इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कर्ल ऑफ v बार इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज कर्ल ऑफ v बार इज इक्वल्स टू 0। अब अगर कर्ल ऑफ v बार 0 है, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज v बार इज irrotational vector, इट इम्प्लाइज दैट irrotational vector। ये हमने प्रूव कर दिया है। अब अगर ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगा, सो इट इज फॉर 6 to 7 marks. When you solve that first part that you show the v bar is a rotational vector, so obviously you get 2 to 3 marks, and then for the next that part you get a 3 marks. So we comes on the next part. अब यहाँ पे irrotational vector है, so यहाँ पे क्या होगा, there exists a scalar function। कौन सा स्केलर फंक्शन है हमारे पास, which is that scalar function u, और रिलेशन क्या है दोनों में, वेक्टर और u में, दैट इज अ v बार इज इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ u, और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द स्केलर फंक्शन u। नाउ हाउ टू फाइंड दैट u, सो वी कंसीडर हियर डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज अ du। अब अगर v बार इन टर्म्स ऑफ x y z है, सो ऑब्वियसली दैट स्केलर फंक्शन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x y z। अब जब आप टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे u का कंसीडर करेंगे, तो यू हैव टू टेक अ टोटल डेरिवेटिव इन दिस फॉर्म, दैट इज अ डेल u बाय डेल x dx प्लस डेल u बाय डेल y dy प्लस डेल u बाय डेल z dz। ऐसे फॉर्म में you have to express that u, total derivative of u, because u is a function of x y z, so you have to take addition of all the partial derivatives of that u with respect to x y z। so ऐसे फॉर्म में आ जाएगा टोटल डेरिवेटिव ऑफ du। अब थोड़ा इसको हम स्प्लिट करते हैं, so see how we write that, it can be written as I del u by del x plus j del u by del y plus k del u by del z डॉट ऑफ, ये डॉट के बाद की टर्म हम यहाँ पे ले लेंगे, i dx प्लस j dy, ये टोटल डेरिवेटिव है, i dx प्लस j dy प्लस k dz। तो ऐसे फॉर्म में लिखेंगे du को। अब हमें पता है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, सो अब i डॉट i हो जाएगा 1, सो फाइनली वी गेट del u by del x dx प्लस j डॉट j इज अगेन 1, del u by del y dy प्लस k डॉट k इज अगेन 1, del u by del z dz। ऐसे फॉर्म में सेम टर्म हमें यहाँ पे मिलने वाली है, सो हमने इस फॉर्म में उसको स्प्लिट किया। अब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, सो दैट इज वैल्यू इज नथिंग बट ये किसकी वैल्यू हो गई, i इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस j इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस k इंटू डेल यू बाई डेल z। ये वैल्यू हो गई हमारी ग्रेड ऑफ u, और ये वैल्यू हो गई हमारी dr बार की। अब आप बोलेंगे मैडम हाउ वी गेट दैट वैल्यू एज अ डी ग्रेड ऑफ u,
अब यहाँ पे मैं आपको स्प्लिट करके दिखाती हूँ कि ये ग्रेड ऑफ यू कैसे है। आई डेल यू बाय डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाय डेल वाई प्लस के डेल यू बाय डेल जेड। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ यू राइट आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड और इनटू यहाँ पे हमने अगर यू लिया तो ये क्या हो गया हमारा, ये ऑपरेटर क्या हो गया, दैट इज अ ग्रेड एंड इनटू यू। सो वी राइट दैट टर्म इन दिस फॉर्म एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट ग्रेड ऑफ यू। ये तो ग्रेड की वैल्यू हो गई, डेल की वैल्यू हो गई और इनटू है यू। सो दैट टर्म कैन बी रिटन ग्रेड ऑफ यू। और रहा सवाल इसका, सो वी दैट आर बार वी कैन मेंशन दैट वेक्टर एज अ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। सो अगर आर बार हम ऐसे डिनोट करेंगे तो डी आर बार इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये यहाँ पे होगा जेड के। If you denote r bar in this way, so dr bar is equals to r dx plus j dy plus k dz, and that's why we write that du as a grad u dot of dr bar. अब हमें पता है कि grad u हमारे पास रिलेशन जो है that is a v bar is equals to grad u. We have that relation and that's why du is equals to, we replace that grad u by that v bar. हम किससे replace करेंगे grad u को, v bar से, because we have that relation. So v bar dot of dr. So we write that. Now we comes on that step. Now that step we continue here. So du is equals to v bar dot of dr bar. I have put the value of v bar is equals here. Dot of dr bar is that term. And now we take a dot product. So 2xyz I dot r. So it become a 1. So that can be written as 2xyz यहाँ पे dx plus आगे की term j dot j, so it can be written as x square z plus 2y into dy plus next is a x square y k dot k dz, so it can be written as x square y k dot k is a 1, so that is x square y into dz. So ये हो गई हमारी टर्म। अब और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा। so 2xyz dx plus x square z dy plus 2y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड। सो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब थोड़ा इस टर्म की तरफ ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऑब्जर्व किए, और अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो आपको पता चल जाएगा कि देयर इज सम रिलेशंस इन बिटवीन दैट। अब यहाँ पे 2xyz dx है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड dy, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई डी जेड। So we take that two terms collect, that is a 2xyz dx plus x square z dy plus x square y dz, और सिंपली जो y की टर्म है उसे हम बाद में लिखते हैं, that is a 2y। अब थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये तीनों भी टर्म आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पे 2x है, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया गया है, सो y और z एज इट इज रहे। आगे के टर्म में क्या हुआ, x स्क्वायर एज इट इज रहा, z भी एज इट इज रहा और y का डेरिवेटिव हो गया dy। उसके बाद के टर्म में x स्क्वायर एज इट इज रहा, y भी एज इट इज रहा और z का डेरिवेटिव हो गया dz। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड वाई का ये तीनों भी टर्म, इफ यू ऑब्जर्व दैट थ्री टर्म्स आर नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। मतलब अगर आपने इस ब्रैकेट को अगर इस फॉर्म में लिखा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इफ यू कंसिडर द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, सो एक्स स्क्वायर वाई जेड का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया दैट इज 2x dx, वाई जेड रहेगा एज इट इज जो टर्म यहाँ पे है। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर जेड एज इट इज रहने देंगे और वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज रहेंगे और जेड का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डी जेड। सो वी राइट दैट थ्री टर्म एज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड
और यहाँ पे है हमारा 2y dy। तो ये तो हो गया हमारा du इज इक्वल टू दैट टर्म। एंड नाउ यहाँ पे भी डेरिवेटिव की टर्म है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव। इफ यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड सो फाइनली यू गेट द वैल्यू ऑफ u, और वही वैल्यू हमें चाहिए थी स्केलर पोटेंशियल दैट इज अ u की। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 2y dy। अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स नथिंग बट दैट टर्म, सो इंटीग्रेशन ऑफ du क्या हो जाएगा, vu हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ दैट टर्म इज नथिंग बट दैट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव दैट इज अ वाई स्क्वायर बाय 2। अब प्लस इंटीग्रेशन समथिंग कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो वी कंसीडर सब टू दैट इज अ c। So finally what we get, u is equals to x square yz plus y square। एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो उसको। अब ये जो कांस्टेंट है c, सपोज फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन वी कंसीडर इट एज अ 0, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, u is equals to x square yz plus c। So in this way we get that scalar potential। Now the same on that same case there is again a second problem। A fluid motion is given by, यहाँ पे v bar दिया है, v bar is equals to y plus zi plus z plus xj plus x plus y k। We are given that vector and we have here mentioned that if this motion is rotational, अगर ये motion जो हमें यहाँ पे v bar दिया है, this motion is irrotational then find a velocity potential। मतलब यहाँ पे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि v bar is irrotational, that already given in the problem that if v bar is irrotational then find the velocity potential। अब जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया कि अगर इरोटेशनल वेक्टर रहता है तो वहाँ पे स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट होता है एंड देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन दैट इरोटेशनल वेक्टर एंड दैट स्केलर पोटेंशियल। जो वो क्या रिलेशन रहता है वो भी मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया, वही हमें यहाँ पे यूज करना है रिलेशन। सो here we write that I have written that vector as it is। We have given that del cross of v bar is 0, that is v bar is a irrotational vector and I have considered here that find a velocity potential। There is no particular notation, so I put here that let phi be a velocity potential। अब phi velocity potential है, v bar irrotational है, so what is the relation that implies v bar is equals to grad of phi। v bar is equals to grad of phi। अगर phi velocity potential रहता है, v bar rotational vector रहता है, then there exists a relation। ये relation रहता ही है, अगर प्रॉब्लम में दिया है तो ठीक है और नहीं भी दिया है so you can write v bar is equals to that grad of that velocity potential। okay, so v bar is equals to grad of phi और हमें अब phi की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे ही हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी थी वैल्यू स्केलर पोटेंशियल, वहाँ पे हमने स्केलर पोटेंशियल लिया था, यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल है। जो भी हमने लिया था पोटेंशियल वी हैव टू टेक इट्स कंप्लीट डेरिवेटिव दैट इज अ डी फाई, और हमने रिलेशन भी निकाला था फ्रॉम दैट इज डी फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहता है रिलेशन, ग्रेड ऑफ फाई डॉट ऑफ डी आर बार। रिलेशन हमारे पास रहता है ग्रेड ऑफ फाई डॉट ऑफ डी आर बार। यहाँ पे फाई की जगह यू था, सो यू था, यहाँ पे ग्रेड यू था, यहाँ पे डॉट ऑफ डी आर बार, सिंपली यहाँ पे चेंज है, यू की जगह फाई है। सो डी फाई इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट ऑफ डी आर बार। अब हर बार वो हमें सिंप्लीफाई यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट दैट डी फाई इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट ऑफ डी आर बार। अगर फाई की जगह यू है तो डी यू इज इक्वल्स टू ग्रेड यू डॉट डी आर बार। अब अगर फाई की जगह साई भी है सो यही रिलेशन रहेगा, सिंपली वहाँ पे वो पैरामीटर जो है वो चेंज होगा। सो दैट डी फाई इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो रिलेशन है वी बार इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई, सो वी रिप्लेस दैट हियर वी बार बाय दैट टर्म, सो दैट गिव्स वी बार डॉट ऑफ डी आर बार। सो ये हो गया डी फाई इज इक्वल्स टू वी बार डॉट ऑफ डी आर बार। अब आगे हम यहाँ पे वी बार की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो व्हाट वी राइट हियर दैट डी फाई इज इक्वल्स टू वी बार की वैल्यू हमारे पास है दैट इज अ वाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जे प्लस एक्स प्लस वाई इंटू के डॉट ऑफ डी आर बार, और डी आर बार की वैल्यू भी हमें पता है दैट इज आई
डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। तो ये तो हो गए, दोनों भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम यहाँ पे लेंगे ये वी बार की वैल्यू हो गई, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, देन देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट, ये डी आर बार की वैल्यू। नाउ वी टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑन दैट साइड। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे हम, दैट इज अ डी फाई इज इक्वल्स टू, हमें पता है आई डॉट आई होगा 1, सो वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स। सो वी राइट हियर वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स। उसके बाद होगा प्लस जे डॉट जे अगेन 1, सो वी राइट हियर प्लस जेड प्लस एक्स इंटू यहाँ पे होगा डी वाई प्लस आगे की टर्म एक्स प्लस वाई के डॉट के, सो एक्स प्लस वाई के डॉट के इज 1 एंड देयर इज अ डी जेड। सो ऐसे फॉर्म में आएगा ये। सो और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हर एक टर्म सेपरेट कर देंगे, सो सॉल्व करने में हमें इजी जाएगा। सो वाई डी एक्स प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड, ये हो गई सभी। अब थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो टर्म और डेरिवेटिव है वो सेम टर्म के हम कलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे वाई डी एक्स है, तो वाई डी एक्स, अब आगे की टर्म हम कैसे लेंगे, अब अगर यहाँ पे वाई डी एक्स है तो आगे की टर्म रहेंगी एक्स डी वाई, मतलब एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई। सो वाई डी एक्स डी वाई की टर्म ढूंढेंगे, यस यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी वाई, ये हो गए प्लस। अब नेक्स्ट है जेड डी एक्स, अब जेड डी एक्स है तो आगे की टर्म क्या होंगी डी जेड एक्स। सो डी जेड एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे डी जेड एक्स है, सो ये हो गई हमारे जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड हो गई। उसके बाद आगे की टर्म क्या होंगी, यहाँ पे जेड डी वाई है तो आगे की टर्म जेड डी वाई, जेड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, अब वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जेड, दैट इज अ वाई डी जेड। तो यहाँ पे ये टर्म लगे तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेती हूँ मैं, तो जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, जेड डी वाई वाई डी जेड। तो इस तरह से सभी टर्म हमने यहाँ पे अब लिख लिए हैं, ये 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स को हमने इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे वाई डी एक्स एक्स डी वाई की टर्म कलेक्ट की, यहाँ पे जेड डी एक्स एक्स डी जेड की टर्म कलेक्ट की, यहाँ पे जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड की। क्योंकि हमें उस टर्म को इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखना है। सो यहाँ पे हो गया हमारा डी फाई इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वाई एज इट इज है डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, मतलब ये लिख सकते हैं हम डी ऑफ एक्स वाई। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, ऐसे इसको एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ zx, मतलब z एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस x एज इट इज z का डेरिवेटिव। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे z एज इट इज है y का डेरिवेटिव, y एज इट इज z का डेरिवेटिव, तो ये हो गया हमारा z। सो हमने उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और आगे हमें इंटीग्रेशन लेना बहुत ही इजी रहेगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड से अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ पे डी ऑफ जेड एक्स प्लस यहाँ पे नेक्स्ट होगा डी ऑफ जेड वाई। एक बार अच्छे से उसको देख लो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, सो डी फाई इंटीग्रेशन फाई, यहाँ पे एक्स वाई होगा डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी ऑफ जेड एक्स का इंटीग्रेशन जेड एक्स होगा और यहाँ पे डी ऑफ जेड वाई का इंटीग्रेशन जेड। सो इन दिस वे वी गेट दैट फाई, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ पे सी जो रहता है वो 0 कंसीडर करते हैं फॉर अवर सिंप्लीफिकेशन। एक बार अच्छे से प्रॉब्लम देख लो, होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट all about the irrotational vector and scalar potential problems. There are again 2 problems for your homework. Prove that the vector field represented by, that is a vector f bar, that vector is z square plus 2x plus 3y plus 3x plus 2y plus z j
plus y plus 2zx into k. We have to show that vector is a irrotational but not a solenoidal. मतलब यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी चेक करके. आपको एक तो चेक करना पड़ेगा डेल क्रॉस ऑफ एफ बार की वैल्यू, और इरिटेशनल दिखाना है मतलब हमें आपको प्रूव करना पड़ेगा इट इज इक्वल टू 0 बट नॉट अ सोलिनॉइडल. मतलब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है क्योंकि कि डेल डॉट ऑफ एफ बार व्हेन यू कैलकुलेट इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब वो सोलिनॉइडल नहीं है. एंड ऑल्सो ऑब्टेन द स्केलर फंक्शन फाई, और हमें फाई की भी वैल्यू निकालनी है. अब रिलेशन आप लोगों को पता है कि स्केलर फंक्शन और इरोटेशनल वेक्टर में क्या रिलेशन रहता है, दैट इज अ ग्रेड एफ फाई इज इक्वल्स टू एफ बार. ये रिलेशन लेके आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे मैंने फाई की वैल्यू आप लोगों के लिए दी है. दैट इज योर आंसर. ये आपको प्रूव करनी है कि ये वैल्यू आती है. देन सेकंड इज प्रूव दैट वेक्टर एफ बार इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2x z स्क्वायर आई प्लस 2xy माइनस zj प्लस 2x स्क्वायर z माइनस y प्लस 2z इंटू के इज इरोटेशनल. ये अगेन आपको प्रूव करना है एफ बार इरोटेशनल है, और फिर यू हैव टू फाइंड इट स्केलर पोटेंशियल. दैट हियर इज सपोज यू टेक अ स्केलर पोटेंशियल u, तो u की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है. दैट इज योर आंसर. यू हैव टू चेक इट. So hope you understand all that part. Revise that, and now we will stop.